Welcome everyone. This is the tutorial video for chapter metals and non-metals. Okay. In terms of metals and non-metals, we have already studied about reaction physical properties and chemical properties. In terms of chemical properties, we have already studied about the reactions with oxygen, reaction with water, and reaction with acids. We have already studied about the reactions with oxygen, water, and acids. Now today, in previous video, I have told you to find out through the video which I have already shared to you regarding the reaction of metals and base. Metals and base. I hope you have already studied about it and you have gone through it. If not, I will explain it here now. But before we go through these things, a quick revision is required. So when we are talking about things that amphoteric oxides, we had a word that those oxides which react with both metals and those metallic oxides which reacts with both acids and base. So in your syllabus you are having two examples, xenon and Al2O3. These are two salts which reacts with both acids as well as with base. Reactions are already available to you. Moving further, when we are talking about water, in terms of water, I have told you that the reaction behavior changes according to the you can say reactivity of the element. The reactivity behavior of reaction with water changes with the reactivity of the element. For example, if I talk about, I will here talk about only few elements: sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, and copper. So when I talk about sodium, it reacts with cold water. It can react with cold water because it is highly reactive. It is highly reactive. Okay. When we are talking about magnesium and aluminium, they both react with boiling water. They both react with boiling water. And when we talk about zinc and iron, they react with steam. That is vapors of water. Vapors of water, not vapors of water. I am not writing in vapors of water because steam has a high temperature. From your 9th class, you should remember that boiling water will have 100 degrees Celsius temperature, but steam can have 4000 degrees Celsius temperature also. Okay, so that is the difference. And when we talk about copper, copper does not react with water at all. So why copper doesn't react with water? Because if you talk about reactivity series, then hydrogen, then comes the copper. In terms of reactivity series, hydrogen is upper than copper. Copper के ऊपर आता है hydrogen. So definitely जो ऊपर है वो नीचे वाले को ऊपर है वो नीचे वाले को रिप्लेस करता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करता. So that is the reason about this sequence or these things. So sodium react with cold water, magnesium and aluminium react with boiling water, zinc and ferrous iron react with steam. Okay, and copper do not show any reaction. So this was a quick revision about these. And when we talk about acids, metals when react with acids, they produce salt and hydrogen gas. They produce salt and hydrogen gas. Now, I don't know how many of you have studied this thing, but when we are reacting metal plus nitric acid, we are not going to receive hydrogen gas. In this situation, we will never receive hydrogen gas except for magnesium and manganese, Mg और Mn. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं हटा देता हूँ तो बाकी और किसी केस में भी आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी when they are reacting with HNO3 because nitric acid is a very powerful oxidizing agent. Okay, so nitric acid क्या है? बहुत ज़्यादा powerful oxidizing agent है. So because of being a powerful oxidizing agent, what it will do,
हाइड्रोजन टू अटैच विद ऑक्सीजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन वहां पे बन रहा होगा वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर देगा, तो हमें वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। व्हाट वी विल रिसीव इज वाटर। ओके, सो आई विल जस्ट राइट द रिएक्शन हियर। Okay, so this is the reaction of zinc with nitric acid. So what is happening here? I am receiving zinc, this compound with NO2 gas and water. I am not receiving hydrogen gas here. Okay, now your task here is to find two things here. First of all, check the you have to find that this reaction is balanced or not. And second thing which you have to do is you have to find out the name of this substance and this substance. Okay, you have to find the name of this substance and this substance. What is its name? Okay, this is your task. You have to do it. Now, when we are talking about base, now we should talk about base. Reaction of base with metals. So when we are talking about reaction of base with metals, what happens here is suppose I took zinc and NaOH as base. Okay, so the reaction of acid and base are quite similar with metals. In acid we said acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Similarly, base plus metal gives salt and hydrogen gas. This is going to remain the same. Okay, so if I write this reaction, okay, now product form here is sodium zincate. The product which is formed here is sodium zincate. Okay, this reaction is also not balanced. This reaction is also not balanced. You have to complete the balancing of this reaction. And mark my words, this is a very important reaction because in your syllabus you are having only two reactions of metal reacting with base. आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ दो रिएक्शन है जहां पे आपको मेटल और बेस की रिएक्शन आपके सामने आती है। मेटल और बेस की रिएक्शन आपके सामने आती है और दोनों रिएक्शन एक है आपकी जिंक और दिस कॉस्टिक सोडा और दूसरी है हमारी एल्यूमिनियम और सेम कॉस्टिक सोडा। Al plus NaOH gives, मैं इसे नाम नोट कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी स्पेस मिल जाए। Okay, the product form here is sodium aluminate. Okay, यहाँ पे था सोडियम जिंकेट, यहाँ पर है सोडियम एल्यूमिनेट। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब 9th क्लास में आपको एक चीज बताई गई थी कि जब भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जब भी हमारी चीजें बनती हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम हमेशा पॉजिटिव को पहले रखते हैं फिर नेगेटिव को रखते हैं।
फर्स्ट वी प्रोवाइड प्लेस फॉर द कैटायन, देन वी प्रोवाइड प्लेस फॉर द कैटायन। तभी हमारा NaCl में हमारा नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा सोडियम एल्युमिनियम से रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है। भाई क्वेश्चन आना चाहिए सर, सोडियम का हमने सोडियम को पहले क्यों लिखा, हमने सोडियम को बाद में क्यों लिख सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे सोडियम की पोजीशन जो है वो उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से रखी गई है। सोडियम इज अ वेरी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत पावरफुल कैटायन है, तो इसको पहले रखा गया, फिर उससे थोड़ा कम जो है, और फिर लास्ट में जो हमारे पास है दैट इज एनायन। दैट्स व्हाई सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सो this is about the reaction of metal with base. This is about the reaction of metal with base. Okay, and according to the syllabus, next thing which you have here is okay, formation of ionic compound. सिर्फ दो टॉपिक्स आपके पास इस चैप्टर में इसके बाद आते हैं। One you already know, but जस्ट कोई रिवीजन ऑफ 9th क्लास या 9th क्लास का कोई रिवीजन होगा यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की। सो बेसिकली आयनिक कंपाउंड मींस एनी कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चीज हमारी को जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनी है उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब कैसे बना है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल Na और Cl का एग्जांपल है, ठीक है। Cl के बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्टेट पूरा हर एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज ऑक्टेट रूल। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मींस हर एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, उसकी लास्ट जो शेल है, जो लास्ट ऑर्बिटल है, उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, वो पूरी पूरी भरी हुई रहे, ठीक है। और अगर ज्यादा है उससे तो वो निकालना चाहता है उसे, और अगर उसमें कम है तो उसे वो भरना चाहता है। ओके, सो वही चीज हमारी यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, okay, sorry for the interruption. So when we are talking about ionic compound, I simply said that ionic compound means which are formed because of the transfer of electrons, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑक्टेट रूल के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में ऑक्टेट रूल के बारे में समझा था दैट कि ऑक्टेट कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्टेट अपनी पूरी करना चाहता है, ईदर बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी आखिरी ऑर्बिटल के देना चाहता है या वो लेना चाहता है, दोनों केस में उसे ऑक्टेट पूरा करना होता है। सो ऑक्टेट पूरा करने के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके पास लास्ट में कितने आते हैं, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में इसके पास क्लोरीन के पास 7 ही आते हैं। सोडियम के पास कितना होता है लास्ट में 1, ठीक है। सो क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम विल बी डोनेटेड टू क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम विल बी डोनेटेड टू क्लोरीन। अब दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपने किसी को अपने 100 रुपए उधार दिए हैं तो उसको भूल थोड़ी जाओगे, ऑब्वियसली विल कीप इन टच विद हिम, भाई वापस कब दे रहा है जल्दी दे। सिमिलरली बिकॉज सोडियम gave 1 electron, its powerful electron to chlorine, so what happens here, sodium will form a bond with chlorine, sodium will form a bond with chlorine, and hence an ionic bond is formed. Similarly for in terms of magnesium, magnesium has 2 positive and chlorine has 1 negative. So what happens here is Mg के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन अगेन हम 2 बनाएंगे क्लोरीन के, बिकॉज हमें बैलेंस भी करना है। सो एक पोजीशन दोनों जगह पे खाली रहेगी, इस एक पोजीशन को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। अब बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया, सेम चीज उधार दे दिया ना, उसको छोड़ेगा तो है, so it will become bond with it and it will form MgCl2. Similarly with oxygen, similarly with every element which are formed because of this transfer of electron. जो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे आयनिक कंपाउंड क्रिएट होंगे, वो इसी तरह बनाए जाएंगे।
तो वहां पे आपको बताना होगा, एट दैट पॉइंट यू हैव टू शो ऐसे करके कि हाँ ऐसे था, इसके पास आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 7 थे, एक इसके पास गया, एक इसके पास गया, तो ये ऐसे पूरा होके ये स्ट्रक्चर बना। ओके, किसी भी केमिकल का आपको दिया जा सकता है, किसी भी सॉल्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो सॉल्ट कैसे बना, वो आयनिक कंपाउंड कैसे बना, यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द सेम मेथड। ओके, after this octet rule and this thing, next topic which you have in your syllabus is alloys. Okay, so when we are talking about alloys, regarding alloys you have already studied somewhat or huge information in your 9th class. आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम भूल गए, सॉरी, एक चीज हम भूल गए यहाँ पर, आयनिक प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी आती है कि ऐसा क्यों है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करते बट लिक्विड स्टेट में कर देते हैं, ये किसी चीज़ों में डिसॉल्व होते हैं, किसी में डिसॉल्व नहीं होते। तो इन सब का कारण यही है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे बताऊं, ओके है, होता क्या है जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब आपने किसी को 100 रुपए उधार किए तो आपके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन जाता है। 100 रुपए वाला स्ट्रांग बॉन्ड है, जब तक वो 100 का 101 वापस ना आ जाए या 100 एटलीस्ट वापस ना आ जाए तब तक वो बॉन्ड टूटता नहीं है, 99 पे भी नहीं टूटेगा। ओके, दैट इज अ कॉमन थिंग। सिमिलरली जब हमारे एक मेटल ने या एक एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो कैसे उसको छोड़ देगा? सो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव फॉर्म्ड अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। इस स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ब्रिटल नेचर में होते हैं, वो उनके जो बॉन्ड्स है वो इजीली ब्रेक नहीं होते, ठीक है। आयनिक की वजह से बने तो एक के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो पोलर कंपाउंड जैसे कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे बेंजीन वगैरह में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज अगेन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है बीच में। सो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है। इसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज, अच्छा, कंडक्शन क्यों नहीं करते? कंडक्शन इन टर्म्स ऑफ दैट सॉलिड फॉर्म में कंडक्शन क्यों नहीं करते? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड फॉर्म, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि सॉलिड फॉर्म में इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, लेकिन जब पानी में इनको डिसॉल्व कर देते हैं तो इनके पास आयन्स आ जाते हैं फ्री, जो कि मूव कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें हम बोलते हैं। सो ये वहां से कॉन्सेप्ट आता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास अलॉयज। When we are talking about alloys, so alloys are made up of when किसी भी हमने मेटल को पिघलाया, अब उसके अंदर हमने डिजायर्ड प्रॉपर्टी के लिए कुछ और चीजें डाल दी, सो वहां से जो चीज बनी दैट इज एलॉय। सो इन मॉडर्न स्टेट व्हेन वी ऐड other elements in it to have some desirable properties of from that element, we call it alloy. मैं एलॉय में आपको ज़्यादा कुछ बता के अभी बोर नहीं करूँगा बिकॉज यू नो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एलॉयज। आपके पास एलॉयज के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट जो चीज़ मुझे आपको बतानी है वो है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कॉपिंग इट डाउन। आप इस लेक्चर को देखते हुए इन चीज़ों को कॉपी करोगे और वहाँ से आप इन्हें याद करोगे, ठीक है। तो जब हम बात करें, हमारे पास कुछ स्पेशल एलॉयज आते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ब्रास, ओके, सो ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 60% और जिंक की परसेंटेज होती है 20%, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक एंड Sn, ओके, 80 10 एंड 10, ओके। Sn क्या है? 10, ओके। सो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉपर, जिंक, Sn, 80 10 10, सो ब्रास एंड ब्रॉन्ज। आफ्टर ब्रास एंड ब्रॉन्ज जो सबसे इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला एलिमेंट एलॉय है वो है सोल्डर। सोल्डर वायर जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक
जाती है कंपोनेंट्स को चिपकाने के लिए, दैट इज सोल्डर वायर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होता है लेड और टिन 50-50 रेशियो में। ओके, सोल्डर वायर जैसे बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बेल। जो मंदिर में बेल होती है वो बेल किस मटेरियल से बनी होती है? ये गेट एक्सेस ऑफ सोनरस मटेरियल, जिसमें से बहुत मीठी सी आवाज आए, दैट इज मेड ऑफ कॉपर एंड टिन। 80% एंड 20%। एंड सिमिलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता ही लगा होना चाहिए, दैट इज स्टेनलेस स्टील। इसमें कभी जल नहीं लगता। ठीक है, एंड लास्ट इज ड्यूरेलियम। Last but not least is ड्यूरेलियम। Okay, ड्यूरेलियम is alloy of copper which is used for manufacturing of aeroplanes वगैरह जो बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो एल्यूमिनियम यूज होता है। अब वो नॉर्मल एल्यूमिनियम यूज होगा तो इट कैन टेक कोरोड, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट ड्यूरेलियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप खुद समझ सकते हो एरोप्लेन का जो फ्यूसेलाज, जो एरोप्लेन की बॉडी होती है वो ड्यूरेलियम से बनी जाती है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकंड, इट इज वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू alloys which you should remember and you should write in your copy, because NCERT और सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके ऊपर बार-बार मल्टीपल क्वेश्चंस alloys में पूछे गए हैं। ठीक है, और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसके बाद कोरोजन। सो कोरोजन के बारे में look, corrosion is a topic which is deleted from this chapter. कोरोजन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके इस चैप्टर से तो डिलीट कर दिया गया, बट कोरोजन आपका फर्स्ट चैप्टर में अभी भी है। ठीक है, कोरोजन आपका फर्स्ट चैप्टर में है, तो अगर मैं यहां से कहूं निकाल दिया और वहां पर है, तो या तो दोनों साइड से हटना चाहिए था। अब बिकॉज एक साइड है तो हमें कोरोजन पढ़ना पड़ेगा। सो कोरोजन का मतलब क्या हुआ? कोरोजन सिंपली मींस दैट फॉर्मेशन ऑफ, यू कैन से, आई शुड नॉट से फॉर्मेशन, I should say reaction of any metal with oxygen and in the presence of water vapors is called corrosion. ठीक है, और formation of oxide of that metal because of the atmospheric conditions is called corrosion. अब corrosion हमारे पास हो गया। ठीक है, corrosion हमारे किसी भी मेटल में हो सकता है। ठीक है, किसी भी मेटल में हमारा corrosion हो सकता है। खासकर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम की खास प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम अपनी सबसे जो अपर टॉप लेयर होती है उसमें कोरोजन आने देता है। ठीक है, उसमें ऑक्साइड की लेयर बनाने देता है। अब एल्यूमिनियम के अंदर जो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है कि उस लेयर की वजह से अंदर का जो मटेरियल है, अंदर जो एल्यूमिनियम है वो हमेशा सेफ गार्डेड रहता है। कैसे? ये मेरा एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये अंदर का मटेरियल है, इसके ऊपर की एक लेयर जो होगी, दिस अपर लेयर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ बैरियर। ठीक है, बैरियर मतलब एक रुकावट बना देगा, जिसकी वजह से बाहर के एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं वो अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम बच जाता है। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ आयरन की बात करें तो आयरन में क्या होता है? इसको ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पर ये चिप्स बन जाते हैं इसमें। ठीक है, तो चिप्स बनेंगे तो बीच में स्पेस खाली रहेगा। अब ये बीच में जो स्पेस है यहाँ पर आपकी रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी और वहां पे ऑक्साइड आपका बनता रहेगा। ठीक है, अब इस
कोरोजन को रोकने के लिए कुछ बेसिक तरीके हैं, ऑयल लगा दो, पेंट लगा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, ठीक है। ऑयल लगाने से कांटेक्ट टूट गया ऑक्सीजन से, पेंट लगाने से कांटेक्ट टूट गया ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक लेयर लगा दी किसी और मटेरियल की तो उससे भी टूट गया, ठीक है। एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की जो कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसकी एक लेयर लगा दी जाती है इसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से गैल्वेनाइजेशन होता है। और गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो लेयर क्या करेगी, खुद खराब हो जाएगी लेकिन अंदर के मटेरियल को बचा लेगी, ठीक है। इसके अलावा टिनिंग भी होता है, टिन की भी लेयर लगाई जाती है, ठीक है। टिन की लेयर लगा दी जिसकी वजह से वो अंदर गलता नहीं है, अंदर कोरोजन बच जाता है। अलॉय हमने ऑलरेडी बता दिया, अलॉय एक टाइप है जिसके अंदर बचाने का तरीका ही तरीका है वो तो, ठीक है। और इसमें हाँ लास्ट है बाय कनेक्टिंग आयरन विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आयरन के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे ये सपोज आयरन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वायर के थ्रू किसी जैसे मैग्नीशियम को रखेंगे इसके साथ, तो मैग्नीशियम के पास क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इसको लगातार देता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो आयरन है वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता। बिकॉज ऑफ these electrons provided by magnesium, iron doesn't go further reaction with air. So ये यहाँ पे सिर्फ एक मैग्नीशियम खराब होता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारी पेट्रोलियम की पाइपलाइंस है, पेट्रोलियम पाइपलाइंस आर वेरी ह्यूज पाइपलाइंस एंड वेरी बिग पाइप्स, और बहुत लंबी लंबी दूरी तक हो सकती है, ठीक है। अब पूरी की पूरी पाइपलाइन पे पेंट लगाना, कुछ भी ऐसे करना, गैल्वेनाइज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, सेक्शन के ऊपर इसको जोड़ के रख देंगे मैग्नीशियम को, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिमिटेड टाइम के बाद या सपोज 3-4 साल बाद बस ये मैग्नीशियम बदलते रहना पड़ेगा। मैग्नीशियम नया रखेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आते रहेंगे तब तक ये कोरोड नहीं होगा और हमारा पाइपलाइन एज इट इज स्टेबल रहेगा। एंड विद दिस वी कंक्लूड दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपको बताना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।